this is my empty list. Now, whatever you have taken in a square bracket, comma separated values like integer values, string values, or float values, all are in a list, right? Now I have executed that, and now you can see that there is a list within square brackets, and you have taken multi-type values. Now, you can convert a tuple into a list by using list constructor. You will say that you have taken a tuple into a identifier, that is A. Now you want to convert that tuple into the list. So it is possible. How? You will simply write identifier, or you will take any variable. You will say list of A, means you have taken one constructor, list constructor. You have converted that tuple into the list, and the output is in front of you, right? Now you want to check the type of this element. So this is here. This is of type list. Now nested list. Nested list is what? You have taken list into the list. You have taken list into the this list, and this is what? This is your nested list. Now you want to do indexing. When you will do indexing in the list, so you have said list 1 of 2. So 2 at index number 2, when you will check that, and the output will be 3, 4. Right? So there will be no issue with nested list or list. Indexing pattern will be same. Now, create sequence from existing sequence. If we are talking about string, list, tuple, dictionary set, these all are what? These all are sequences. So what we are doing, we are just simply creating sequence from existing sequence. What? String is a sequence, means you have given a name, that is hello. Now you want to convert that string into the list. So that is possible. So simply you are used your list constructor. So list constructor में क्या हुआ? हर वैल्यू को उसने कॉमा सेपरेटेड, पूरे वर्ड की हर कैरेक्टर को उसने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करा दिया, राइट? नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट टपल को भी हम हमारी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हियर द आउटपुट इज लिस्ट. नाउ इफ यू वांट टू टेक द वैल्यूज, फ्रॉम द यूजर्स, I'm repeating, if I want to take the values from the user, so we all know that we are using an input function. So here you can see that I have entered values. Yeah. So what it did, it simply, whatever you have given, it simply took one character, one value it took, and then it generated a list by comma separated value. 1, then comma, then 1, then 2, then comma, then 2, comma 3. Why didn't take 11 as a value? For that, we will use our eval function. If we want कि जैसे मैंने इनपुट में वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज बिल्कुल उसी तरीके से ही आपकी लिस्ट में आनी चाहिए. सिंपली यू विल डू दैट, यू विल यूज दैट eval फंक्शन, राइट? यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब मैं eval फंक्शन को यूज कर रही हूँ और वैल्यूज ले रही हूँ, सो हियर लाइक 11, 12, 13, एंड व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस, वेट अ मिनट, अभी मैंने L1 को एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो L1 की वैल्यू पिक की इसने. आई सेड L की वैल्यू चाहिए, मैं दोबारा से ले रही हूँ 11, 12, 13, 11, 1, 2, 3, 13. Okay. Now when I press enter, so you can see that the output is in a tuple, not in a list. Means eval function जो आपको आउटपुट दे रहा है वो एक टपल में दे रहा है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, अगर आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को लिस्ट के अंदर लेना है, तो सिंपली यू विल यूज लिस्ट कंस्ट्रक्टर. मीन्स आप उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, एंड देन यू सेड L1. ओके फाइन. नाउ यू विल सी दैट 11, 12, 13 and the values are in a list, right? Now you can see that ki, whatever the values we are taking, so those values will be in the form of tuple. Then we can convert that tuple into the list. Means if we want from values from the users by using eval function, then we can convert those values in the list. Fine. Now accessing list. Accessing list is what? I want to check the particular value is existing on that index number. I said list 1 of 2. Fine. You said list है आपकी कोई, और you want to check at that index number कि that list 1 के second index number पर कौन सी value है. So value will be 3. Similar, you want to change the value at particular index. That is assignment. So you can do within list because lists are mutable. तो list आपकी क्या होती है? Mutable होती है, तो assignment possible है. So what you did? L1 of 2 equals to 6, and there it is.
राइट. व्हेन यू डिड दैट, आपने उस वैल्यू 3 जो आपकी 2 इंडेक्स नंबर पे थी, आपने उसको 6 से इंटरचेंज कर दिया, तो रिजल्ट विल बी 1 2 6. नाउ आई वांट टू चेक द लेंथ ऑफ दिस L1. मुझे L1 का मींस किसी लिस्ट का, किसी टपल का, किसी स्ट्रिंग का, किसी का भी लेंथ चेक करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आई विल यूज दिस len मेथड. So here the value is 3. Now list are mutable. We know that कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. So we are done with that already. Now traversing a list. अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है one by one, so either we can use for loop or while loop. So here for loop we are using. So what I said, if for I in L1 means L1 में जितने भी एलिमेंट्स है वन बाय वन किसको असाइन होंगे, I को, और I यहाँ प्रिंट हो जाएगा. एंड I यूज n. एंड में मैंने लिया सिंगल स्पेस कि आपकी जो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो सिंगल स्पेस में प्रिंट हो जाएगा. बट अगर मैं इसको ना लूँ, यहाँ से रिमूव कर दूं, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा like this. Okay, now comparing list, this is also possible here. How you have taken two lists L1 L2. L1 L2 को आपने एक लिस्ट दिया, L3 को एक लिस्ट दिया. ओके फाइन. now you are comparing that क्या L1 और L2 के एलिमेंट्स इक्वल है लेंथ में भी, और जो एलिमेंट है उस इंडेक्सिंग पे क्या वो सेम है. तो व्हेन यू चेक द रिजल्ट इज ट्रू. then I said L1 equals L3. Is it? No, because मैं जब चेक कर रही हूँ L1 की इंडेक्सिंग 0 पे एलिमेंट 8 है और L3 की इंडेक्सिंग 0 पे एलिमेंट 2 है. तो क्या हुआ, हमें जब चेक किया तो रिजल्ट इज फॉल्स. नाउ आई वांट टू कंपेयर दैट L1 इज लेस देन L3. इज इट? मैंने जब L1 की इंडेक्सिंग 0 पे चेक किया तो देयर वाज अ एलिमेंट 8, राइट. बट L2 की इंडेक्सिंग 0 पर एलिमेंट क्या था, 2. L1 की इंडेक्सिंग 0 पर एलिमेंट बड़ा है और हमने यहाँ पूछा है क्या छोटा है, नो. तो क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स, राइट. ये सब चीजें मैं बहुत स्पीडली चल रही हूँ बिकॉज हम ये सब चीजें कर चुके हैं एक बार. तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी आर रनिंग वेरी फास्ट. नाउ आई वांट टू चेक द आईडीज. मुझे मेमोरी लोकेशंस चेक करनी है पर्टिकुलर लिस्ट की. तो क्या हुआ, आई सेड आईडी ऑफ L1 एंड आईडी ऑफ L3 एंड आई गॉट द आउटपुट like this, right? So I got the memory locations. Now some list operations like joining list. We have already done our concatenation operator that works on if both value of same type, means जो operands आप use कर रहे हैं that should be of same type, integer integer, string string, list list, tuple tuple. Like this it work. Otherwise अगर different data types है तो ये work नहीं करते. Similar with list also. L1 plus L2 I said. So what it did, it simply write first list, then it writes second list. Now I want to say L1 plus L3. So first list was this one and list 3 was 2 3 4 8. Correct? Now L1 plus 2. I can't add a single number into the list. I can't add a single number into the list. This is not possible because list L1 is a list and 2 is an integer number. It will raise an error. Fine. Now, if I want to add like this, L1 plus equals list 2. So, this is possible. You said that. अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं that the elements is 8 2 3 5 था आपका list 1 में और उसमें एक एलिमेंट एक और ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे जो 2 ये कंसीडर हो रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये एज अ लिस्ट कंसीडर हो रहा है. फाइन. नाउ आई सेड लिस्ट 1 प्लस स्ट्रिंग. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि हम एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग को ऐड कर पाए. बट if I will use this assignment operator and I said list plus equal quotes के अंदर मैंने लिखा ABC, ये इस तरीके से ओपन नहीं होगा. हमारा क्या होता था अभी तक जब हम मैथमेटिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे थे हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर, तो ये इस तरीके से एक्सपेंड होता था लाइक A प्लस इक्वल B इज A इक्वल्स टू A प्लस B, राइट. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट में जब हम इस तरीके का ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये क्या करता है, 1 by 1 कैरेक्टर को पिक करेगा और लिस्ट में अरेंज कर देगा like this. Now replication. I said L1 is equals to 1 comma 2 मेरी एक list है. I said L1 multiply 3. So means what? It will repeat this list 3 times. It will not multiply every element by 3. It will just revert or it will give result the list 3 times. Okay. Now slicing the list. Slicing, I think now what time it's clear to you everyone. Now I said L1 1 2 7 there are numbers. I said L1 0 colon 3. In slicing you have to keep in your mind that we are using this colon sign. I said L1 0 colon minus 3.
and I said A. 0 colon -3 means 0 indexing number से हमें क्या जाना है -3 तक। -3 कहाँ है मेरा, -3 है, -1, -2, -3, उससे पहले वाले एक एलिमेंट कौन सा है, यहाँ तक हम रुक जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, दिस इज, ठीक है। नाउ A2 of 6, yeah this is also possible with list, we can do that। ये जो इसने A पिक किया है आपका, या आपका A अब ये था ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स नंबर में इसने 6 कर दिया, रिप्लेस कर दिया वैल्यू को। नाउ ऐसे कोई लिस्ट है उसका स्लाइसिंग 3 कॉलन 13, तो 3 पे मेरा इंडेक्स नंबर क्या है, 3 इंडेक्स नंबर पे मेरी वैल्यू है 0 1 2 3, सो इट्स 40 कॉलन 30 तक जा रहा है। कॉलन 30 मतलब 3 के बाद जितनी भी वैल्यूज है सब आने चाहिए। अब 30 तक नहीं है इंडेक्सिंग, इट्स ओके, लेकिन जहां तक है वहां तक की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, तो इट्स हियर, फाइन। नाउ आई सेड L1 -1 कॉलन 4 कॉलन 1, -1 मेरा क्या है 70 है, मुझे कहाँ तक आना है, ये बोल रहा है 4 तक आना है। 4 मेरा क्या है 0 1 2 3 4, यहाँ तक आना है। बट -1 से 4 मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, हाउ कैन आई, और स्टेप वैल्यू भी इसने बोला है 1 है, आई कांट, बट स्टेप वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, तभी मैं इंडेक्स 4 पे आ पाऊंगी। ये इंडेक्स -4 होता तो स्टेप वैल्यू 1 चल जाती, लेकिन यहाँ पे क्या इंडेक्स 4 है, तो ये आपको क्या देगा, ब्लैंक, कुछ भी दीजिए, ठीक है। नाउ लिस्ट 1 2 कॉलन 5, 2 कॉलन 5 मींस 2 इंडेक्स नंबर, यानी कि 30 से 5 तक जाना है। 5 से एक नंबर पहले हम रुक जाएंगे, 3 4 2 3 4, यानी कि 30 40 50, so here it is। now 0 colon 10 colon 2, 2 is what your step value, yes मैम ये जो ये वाला था स्टेप वैल्यू वाला, वो वाला एक बार दोबारा बताना। which one, मैम ये Khushbu, your voice is not clear। मैम 37 37 this one, this one Khushbu, -1 colon 4 colon 1, yes यस मैम। okay। now what it said -1 से 4 तक जाना है आपको। is it possible with you कि -1 से 4 तक आप आ सकते हो, आपके 4 इंडेक्स नंबर पे कौन सा है 50 है, -1 पे क्या है 70 है, तो इसने कोई भी एलिमेंट क्यों नहीं डिस्प्ले कराया, क्योंकि स्टेप वैल्यू 1 से आप मूव नहीं कर सकते, तो इसने आपको ब्लैंक लिस्ट दिखा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं -1, तो द वैल्यू इज 70 60, क्लियर, कि अगर Yes, हमें राइट टू लेफ्ट मूव करना है और इंडेक्सिंग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हमारा स्टेप वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। बट इफ आई से वेट, इफ आई से हियर -4, अब बताइए, अब मेरा स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 है ना, अगर मैं कोई स्टेप वैल्यू नहीं देती तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो तब भी मुझे क्या करना है, स्टेप वैल्यू देना होगा, दैट इज -1। नाउ यू कैन सी, राइट, तो हमें स्टेप वैल्यू की जरूरत पड़ती है नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस राइट टू लेफ्ट आने के लिए, करेक्ट, फाइन, yes मैम। चलिए ओके। सो हियर 0 कॉलन 10 कॉलन 2, यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या है आपका 2 है, स्टेप वैल्यू 2 से आ जाएंगे आपकी वैल्यूज, जो भी 2 वाला डिफरेंस होगा वहां पे हर सेकंड वैल्यू को पिक कर लेगा, ये 10 30 50 70, राइट। नाउ कॉलन कॉलन 3, मतलब आपको स्टेप वैल्यू दिया हुआ है लेकिन फर्स्ट और लास्ट वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब आपको कहाँ से 0 से लास्ट इंडेक्स तक जाना है 3 स्टेप वैल्यू के साथ, फाइन, वी विल गो एंड द रिजल्ट इज दिस, फाइन। नाउ I said L1 5 colon 2, so start last 2, मतलब आपको 5 इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है स्टेप वैल्यू 2 के साथ, तो रिजल्ट इज 60 ओनली, बिकॉज आपका 5 कहाँ है
0 1 2 3 4 5 5 पे क्या आ रहा है आपका 60 आ रहा है बस। 60 के बाद आपको जो लास्ट तक जाना उससे एक पहले वैल्यू पे हम रुक जाते हैं, तो मतलब आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू डिस्प्ले हुई, दैट इज 60। नाउ आई सेड 5 कॉलन 0 कॉलन 2। अब आप मुझे इसका आंसर दो, आपको इंडेक्स नंबर 5 से इंडेक्स नंबर 0 पे आना है और स्टेप पहले 2 है, इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो मैम। नो। तो इसने आपको क्या दिया, ब्लैंक लिस्ट दिया। बट अगर मैं स्टेप वैल्यू -2 कर दूं देन यस मैम। we will get the values and these are 60 40 20, fine. So for now this is enough.